Welcome to Connect with Computer for Grade 8 by Coral Publishers. So children, we are going to start with chapter number 10, that is Programming in Python. तो chapter connect लेते हैं. You have to write the method to find out the total number of electricity units consumed in a month and calculate the electricity bill. यहाँ पर हमें दिया हुआ है units consumed. First 200 units के लिए आपको 0 पैसे देने हैं. For next 300 units के लिए 8 rupees per unit and next 300 units के लिए you are going to pay rupees 10 per unit और अगर greater than 800 units हैं then you are going to pay rupees 12 per unit. तो आप अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल ओपन करेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल किसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. And later we will use this for Python programming. Now we talk about introduction of Python. Python is a widely used general purpose high level programming language, and Python language was created by Guido van Rossum in 1991, and further it was developed by Python Software Foundation. It is designed with an emphasis on code readability, and its syntax allows programmers to express their all concepts in fewer lines of codes. तो बहुत friendly language है, and Python is a programming language that lets you work quickly and integrate the system more efficiently. It is used in various fields including software development, web development, scientific computing, big data and artificial intelligence. Python lets you work quickly and integrate system more efficiently. हम क्या क्या पढ़ेंगे? Features of Python, installing Python on Windows, programming in script mode, Python statement and converting values. तो फीचर्स देखते हैं. सबसे पहला फीचर है Python is easy to use. It is very developer friendly language, which means that कोई भी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वर्क कर सकता है. एंड जो भी हमारी अलग लैंग्वेजेस हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी जैसे जावा, C++, ये सबसे इजी लैंग्वेज है सीखने में. Python is very powerful. इसका मतलब इट अट्रैक्ट्स डेवलपर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. और बहुत सारी कंपनीज जैसे गूगल, IBM, इंडस्ट्रियल लाइट प्लस मैजिक, माइक्रोसॉफ्ट, नासा, रेड हैट, वेरिटॉस, ज़ेरोक्स, याहू, ये सब आपकी पाइथन पर वर्क करती हैं. पाइथन इज ग्लू लैंग्वेज. इट कैन बी इंटीग्रेटेड विद डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, जावा के साथ इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है. So programmer can take the advantage of work which was already done in other language while using Python. तो और language का work इसमें integrate हो जाता है. Python runs everywhere. इसका मतलब Python runs on from Palm to a Cray. And if you don't have a supercomputer in a Dell, you can still run Python on Windows. Macintosh मतलब किसी भी मशीन पर, लिनक्स मशीन पर भी ये वर्क करती है. एंड दैट्स जस्ट द टॉप ऑफ द लिस्ट. पाइथन प्रोग्राम्स आर प्लेटफॉर्म्स इंडिपेंडेंट, विच मीन्स रिगार्डलेस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में बना हुआ प्रोग्राम होगा वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करेगा. It is free and open source. Python is free. You can install it on your computer और उसके लिए हमें कभी पे नहीं करना पड़ेगा. But Python's license let you do much more. अगर आपको एडवांस फीचर्स यूज़ करने हैं तो हमें उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा. अब कैसे इंस्टॉल किया जाता है? यू कैन इंस्टॉल पाइथन ऑन योर कंप्यूटर. सबसे पहले हम पाइथन www.python.org वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर नेविगेट करके डाउनलोड्स के ऑप्शन पर आ जाएंगे. क्लिक ऑन डाउनलोड पाइथन और आपका एक न्यू पेज अपीयर हो जाएगा. स्क्रॉल द विंडो एंड क्लिक ऑन विंडोज इंस्टॉलर 32 बिट पर हम क्लिक करेंगे. और इन दिस केस विंडोज इंस्टॉलेशन इज 64 बिट सिस्टम. देन डाउनलोड आप करेंगे विंडोज इंस्टॉलर 64 बिट इंस्टॉलर. तो डिपेंडिंग ऑन आपका सिस्टम कैसा है हम वहाँ पर विंडोज इंस्टॉल कर लेते हैं.
Now how to start Python? Python comes with the integrated development environment. उसको हम IDLE बोलते हैं. The development environment is a set of tools that makes writing program easily, and you can think of it as a word processor of your programs. But it's even more than a place to write, save और edit the work. ये हमारा Python यहाँ पर डाउनलोड हो गया है. Now IDLE provides two modes. एक इंटरैक्टिव मोड होता है, एक उसका स्क्रिप्ट मोड होता है. तो कैसे वर्क करते हैं? Click on start button and type Python in the search box, and then click on IDLE Python 3.9.0 to open. इसको हम 3.9.0 को Python को ओपन करते हैं. Now programming in interactive mode. This is the quickest way to start Python in the interactive mode. ये इसकी IDLE shell खुल गई और यहाँ पर आप अपने Python के कमांड्स देने इन प्रॉम्प्ट्स के सामने स्टार्ट कर सकते हैं. एंड इसको बोला जाता है इंटरैक्टिव मोड. जब आप कुछ टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, आपका रिजल्ट तभी आ जाएगा. राइटिंग योर फर्स्ट प्रोग्राम. लेट अस स्टार्ट. हमने लिखा प्रिंट, ब्रैकेट में कोटेशन मार्क्स में लिखा गुड मॉर्निंग, और जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया हमें ये लिखा हुआ मिल गया. नाउ साइबर टिडबिट्स. Python is case sensitive and by convention functions name are in lower case. So print hello will work. अगर हम P को कैपिटल लिखेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा, ये ध्यान रखना, बिकॉज पाइथन में कैपिटल P और स्मॉल p का डिफरेंस होता है. इट इज केस सेंसिटिव. सो एवरी टाइम व्हेन यू गिव द कमांड तो वो स्मॉल लेटर्स में दिया जाएगा. प्रोग्रामिंग इन स्क्रिप्ट मोड. Python IDLE also offers a script mode in which you can write, edit, लोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपने प्रोग्राम. मतलब ये बिल्कुल आपका वर्ड प्रोसेसर की तरह है और इसमें आप अपने कोड्स लिख सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू राइट द फर्स्ट प्रोग्राम. So you can open the script mode window from the interactive window, और सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे फाइल, फिर ओपन करेंगे न्यू विंडो एंड अ न्यू विंडो विल अपेयर. और इस न्यू विंडो में हम कुछ भी टाइप करेंगे. हमने टाइप किया प्रिंट गुड मॉर्निंग और हमने एंटर की प्रेस की. बट अब यहाँ पर गुड मॉर्निंग लिखा हुआ नहीं आया. क्यों नहीं लिखा हुआ आया? क्योंकि ये इंटरैक्टिव मोड नहीं है. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, सबसे पहले हम यहाँ पर पूरा प्रोग्राम लिखकर इसको रन करेंगे. और रन कैसे किया जाएगा? यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन रन ऑप्शन और रन मॉड्यूल, मतलब हम रन मॉड्यूल पे क्लिक कर सकते हैं या इवन F5 को क्लिक कर सकते हैं. द इंटरैक्टिव विंडो डिस्प्लेज द रिजल्ट. आपको इंटरैक्टिव विंडो में रिजल्ट नजर आ जाएगा. नाउ हाउ टू सेव योर प्रोग्राम. तो सेव करने के लिए आपने क्या करना है? गो टू सेव, फाइल पर जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे और यहाँ पर आप अपने फाइल को नेम दे देंगे. सो बाय डिफॉल्ट द फाइल गेट्स सेव्ड इन योर पाइथन फोल्डर दैट वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन. अगर आप अपना इंडिविजुअल कोई डिफरेंट फोल्डर बनाना चाहते हैं, कोई न्यू लोकेशन पे है, तो आपको उसके लिए लोकेशन देनी पड़ेगी. सो टू रन योर गुड मॉर्निंग प्रोग्राम क्या करेंगे? क्लिक ऑन रन ऑप्शन एंड सेलेक्ट रन मॉड्यूल and you will get the answer. Okay, the interactive window displays the result. जो आपने प्रोग्राम लिखा है उसका रिजल्ट वहाँ पर विजिबल हो जाएगा. Now you will notice that interactive window contains the old text. देखो यहाँ पर old text आ रहा है गुड मॉर्निंग और न्यू टेक्स्ट आ रहा है गुड मॉर्निंग एवरीवन. तो दोनों चीज़ें आपकी विजिबल हो रही हैं. Below that you are able to see the restart message. तो हम restart message को क्लिक कर देंगे and then we are going to run the program. Now coming at cyber tidbits once again. To run the program from IDLE, the program should be first saved. और अगर इंटरैक्टिव मोड में काम कर रहे हो तो आपका रिजल्ट बहुत जल्दी हो जाएगा. कुछ कैलकुलेशंस करनी है प्रॉम्प्टली तो हम इंटरैक्टिव मोड में करते हैं. एंड इफ़ यू वांट टू गिव सेट ऑफ कमांड्स टुगेदर तो हम पूरे प्रोग्राम की स्क्रिप्ट को लिखते हैं और उसको बोला जाता है स्क्रिप्ट मोड.
नाउ कमिंग एट पाइथन कमेंट्स, आपने ध्यान रखना है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने सिर्फ कमेंट्स की तरह देनी है। जब आप प्रोग्राम को ओपन कर रहे हैं तो उस टाइम आप ये पहचानना चाहते हैं प्रोग्राम किस चीज़ के बारे में लिखा है। सो इन दैट केस यू यूज़ हैशटैग। ये हैशटैग सिंबल जो होता है ये सिंगल लाइन कमेंट होता है, और अगर मल्टी लाइन कमेंट्स आपने देने हैं देन यू कैन एनक्लोज द टेक्स्ट इन कोटेशन मार्क्स। ओके, देन कमिंग टू डिस्प्लेइंग स्ट्रिंग इन पाइथन, तो प्रिंट कमांड होता है जो प्रिंट ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, इट हेल्प अस टू डिस्प्ले एनीथिंग इन पाइथन। लेट्स ट्रे, ये हमने हेलो को प्रिंट करना है, तो हेलो प्रिंट करने के लिए हम लिखेंगे प्रिंट और ब्रैकेट में कोटेशन मार्क्स के अंदर हेलो लिखेंगे। कैसे? दिस इज अ स्मॉल प्रोग्राम विच आई हैव रिटन, प्रिंट देन ब्रैकेट के अंदर लिखा है प्रोग्राम हेलो 2.0, प्रिंट सेम मैसेज एज बिफोर, प्रिंट जस्ट अ बिट बिगर, प्रिंट हेयर एंड इक्वल टू। और जब इस सबको हमने रन किया तो हमें कुछ आउटपुट इस तरह से मिलेगा। सी द वॉट एवर यू हैव रिटन इट इज कमिंग इन सिंगल लाइन, और ब्रैकेट ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो कुछ लिख रहे हैं वो सिंगल लाइन में डिस्प्ले हो रहा है। एवरी टाइम प्रिंट कमांड मीन्स you are giving the command in the next line. Okay, so this is how you print the output, and your output is displayed when you execute your program. And then you can use either the pair of single quotes or double quotes to create a string values. तो इसलिए हेलो सिंगल कोट्स में लिख रहे हैं या डबल कोट्स में लिख रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। Here double quotes are like book ends, telling the computer where the string begins and ends. So if you use a pair of double quotes, जैसे in your string you can use as many single quotes inside the string. So this is how you use the message, and जो भी मैसेज प्रिंट करना है वो हमेशा सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं। You can also print multiple values in a single call to print function, just like multiple list of arguments values separated by commas. तो हमने लिखा print Sam, comma, message, फिर से एक और कोटेशन में comma, फिर दूसरे कोटेशन मार्क्स में as before and close। और इसको हम अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं, जैसे प्रिंट ब्रैकेट कोटेशन मार्क में जस्ट कॉमा, अ बिट कोटेशन मार्क्स में फिर कॉमा, बिगर फिर कॉमा। दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर अस टू ब्रेक अप द आर्ग्यूमेंट लिस्ट ओवर मल्टीपल लाइन्स बिकॉज इट कैन मेक द कोड इजियर टू रीड। आउटपुट तो सेम आएगा लेकिन हमें कोड को रीड करना इजी हो जाएगा। So by default print function prints a new line character in a final value. This means that a subsequent call of print would display the text to the following line, and you can specify the space, जितना जितना आपको space देना है उतना उतना आप space mention कर सकते हैं। Now coming to Python statement, instructions written in the source code for execution are called statements. There are different types of statements in Python programming language, like assignment statement होती है, condition statement होती है, looping statement होती है. These help us to get the required output. अब हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल n इक्वल्स टू 50, तो यहाँ 50 वैल्यू n वेरिएबल के अंदर असाइन हो रही है। कमिंग टू लाइन कंटिन्यूशन करेक्टर, generally one statement per line is written in Python, but you can stretch the single statement across multiple lines by the help of line continuation corrector. ये बैकस्लैश जो होता है ये line continuation corrector होता है। Put it where you want to use a space but not inside a string. String के अंदर होगा तो वो as it is print हो जाएगा। To continue a statement to the next line, the computer will act as if it sees one long line of code. Now we come to variables. Variable is an object or place in the memory जिसके अंदर आप कोई values को store करते हैं। And value of a variable can be string. String मतलब alphabets और numbers का combination. It can be pure numbers
जैसे आपने कॉस्ट लिखी किसी चीज़ की, रोलमेंट नंबर लिखा, हाउस नंबर लिखा, और इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ alphabets and numbers like this. In Python, we can use the assignment statement to create new variable and assign specific values to them. Suppose हमने लिखा student name is equal to quotation marks में mention किया कमल. Now this is alphabetical. English marks equals 22. Now this is numerical value. And basic salary, again it is a numerical value. The following two important rules are there which we have to follow. A variable name can contain only numbers, letters and underscores, and variable name cannot start with a number. तो आपने जितने भी ये वेरिएबल नेम्स लिए हैं वो कोई भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता. नाउ सपोज यू वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. तो हमने लेंथ लिया 60, ब्रेथ लिया 30, एरिया लिखा 60 मल्टीप्लाई 30 और प्रिंट कर दिया. ये मैसेज होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड कॉमा एरिया. ये जो एरिया लिखा है ब्लैक कलर में जो आया है, दिस इज अ वेरिएबल एंड यू विल गेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एज द प्रोडक्ट ऑफ 60 एंड 30, दैट इज 1800. नाउ व्हेन यू वांट द वैल्यू टू बी एक्सेप्टेड बाय द कीबोर्ड, तो हम इनपुट कमांड का यूज करते हैं. नेम इक्वल्स इनपुट, व्हाट्स योर नेम. अब जब आप इसको रन करेंगे तो कंप्यूटर आपसे नेम मांगेगा, and whatever name you are going to give, that will be stored in this particular variable. Now coming to numbers, we generally encounter two different types of data in our life. These can be strings or numbers, and numbers can be further of two types. या pure integers हो सकते हैं या decimal numbers भी हो सकते हैं. तो न्यूमेरिकल डाटा अगर आप इंटीजर ले रहे हैं तो INT से रिप्रेजेंट करेंगे, वो आपके इंटीजर्स होंगे जो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स और जीरोस हो सकते हैं. फ्लोटिंग नंबर्स आपके हमेशा डेसिमल में आते हैं. ये एक छोटा सा प्रोग्राम है. आपने एज ली 36, नेम लिया यहाँ पर कशिश एंड मार्क्स लिए 28.5. दिस इज न्यूमेरिकल इंटीजर्स, दिस इज अल्फाबेटिकल एंड दिस इज डेसिमल टाइप. और इसको हमने यहाँ पर प्रिंट किया. तो प्रिंट करके इसकी क्लास मेंशन की. दिस इज इंटीजर, क्लास इज स्ट्रिंग एंड द लास्ट क्लास वी हैव टेकन एज फ्लोट. तो क्लासेस प्रिंट हो गई. नाउ यू कैन कन्वर्ट द वैल्यू. आपने कोई भी एज इनपुट की है, उस एज को इंटीजर में कन्वर्ट करना है. सिमिलरली यू कैन यूज फ्लोट कमांड. फ्लोट कमांड क्या होगा, इंटीजर में आप कोई भी मार्क्स इनपुट कर रहे हैं और वो नियरेस्ट शॉर्टेस्ट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा. सो फ्लोट रिजल्ट्स द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू बाय कन्वर्टिंग x. अगर आपने 10.0 लिखा है तो फ्लोट होकर 10.0 हुआ. इंटीजर्स आपके हमेशा इंटीजर वैल्यू देंगे एंड स्ट्रिंग विल गिव यू अ स्ट्रिंग वैल्यू जो अल्फा न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी. नाउ पाइथन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, जो असाइनिंग ऑपरेटर्स होते हैं, इक्वालिटी, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू एंड मल्टीप्लाई इक्वल टू. Similarly, arithmetic operation plus, minus, multiply, divide, percent, and this is power. Bitwise operators. This is and, then this is absolute, this is power, approximate, less than, greater than. And logical operators में हमारे पास and, or, not आता है. अर्थमेटिकल ऑपरेटर में ग्रेटर देन, इक्वल टू, दिस इज नॉट इक्वल टू, एंड हम लेस देन इक्वल टू को भी नॉट इक्वल टू बोलते हैं. लेस देन इक्वल टू, एंड दिस इज फॉर इक्वल टू. देयर इज अ डिफरेंस. इसको हम इक्वालिटी बोलेंगे, जिसको हम बोलते हैं असाइनिंग ऑपरेटर. एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर में इज ऑपरेटर आता है, इज नॉट ऑपरेटर आता है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन. जो प्लस का साइन होता है ये ऐड करता है, जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू 30. माइनस में डिफरेंस निकलता है, जैसे a माइनस बी इक्वल्स -10. मल्टीप्लीकेशन a मल्टीप्लाई b इक्वल्स 200. एंड इन दिस वे डिविजन का साइन डिवाइड्स लेफ्ट हैंड ऑपरेशन बाय टू द राइट हैंड ऑपरेटर. यहाँ पर परसेंट साइन को हम मॉडुलस बोलते हैं. इट डिवाइड्स लेफ्ट हैंड ऑपरेटर बाय राइट हैंड ऑपरेटर. एंड यहाँ पर हमें जो रिजल्ट होता है वो रिमाइंडर मिलता है. एंड दिस इज द साइन ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर. एक्सपोनेंशियल पावर में आपको ये रिजल्ट मिलता है. सिमिलरली यहाँ पर ये डबल स्लैश जो होता है, इट शोज फ्लोट डिवीजन.
division of operand where the result is the quotient in which the digit after decimal point is removed. तो हमारा रिजल्ट कभी भी डेसिमल पॉइंट में नहीं आता. जैसे 9 को हमने 2 से डिवाइड किया तो इट विल बी ओनली इंटीजर वैल्यू, यू विल गेट द आंसर एज 4 ओनली. नाउ वी हैव अ प्रोग्राम हियर. ये प्रोग्राम आप देखेंगे हमने a लिया 9, b लिया 4, ऐड कर रहे हैं a प्लस बी, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं a माइनस बी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं a मल्टीप्लाई b, डिविजन a डिवाइड बाय b. डिविजन 2 इज यहाँ पर हम सिर्फ फ्रैक्शन इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं एंड मॉडुलस ऑफ a. जितने भी हमने अभी, दिस इज एक्सपोनेंट, तो अभी तक हमने जितने ऑपरेशन सीखे हैं इन्हें परफॉर्म किया और इनके रिजल्ट्स हमें यहाँ पर मिल गए. यहाँ पर 9 + 4 13, यहाँ पर डिफरेंस निकाला, here we have multiplied, here we have taken the result in division, ये डिवीजन इंटीजर में आ गया एंड दिस तरह से हमें पावर में मिला आंसर एंड वी हैव परफॉर्म्ड ऑल द ऑपरेशंस. फिर रिलेशनल ऑपरेशन आते हैं. रिलेशन में ये चेक कर रहे हैं इफ द टू वैल्यूज आर इक्वल. यहाँ पर चेक कर रहे हैं वैल्यूज आर नॉट इक्वल एंड यहाँ पर 2 ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स इन दोनों का सेम रोल है और इसके बारे में हम सीख चुके हैं. दिस इज ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, राइट. अब इन्हीं को यूज करके हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा है. हमने a की वैल्यू ली, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, और यहाँ पे कंपेयर किया है क्या a एंड b इक्वल है, ट्रू, यस. एंड इफ a इज नॉट इक्वल टू b, यहाँ पर सिर्फ सारे ट्रू और फॉल्स में आंसर आ रहे हैं बिकॉज हमने ये सारे ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं जिसमें हमें ट्रू और फॉल्स में आंसर मिलेगा. नाउ इफ द ऑपरेटर इज एंड तब यूज होता है जब दोनों चीजें ट्रू हों, और यूज होता है इफ वन ऑफ देम इज ट्रू. एंड नॉट कब यूज होता है, इट इज ट्रू इफ द ऑपरेंट इज फॉल्स. सिमिलरली असाइनमेंट ऑपरेटर में हम इक्वल टू का साइन यूज करते हैं, जैसे c इक्वल्स a प्लस b प्लस इक्वल टू c प्लस इक्वल टू a, इट इज सेम एज c इक्वल्स c प्लस a. c माइनस इक्वल टू a का मतलब c इक्वल्स c माइनस a. ऐसे ही c मल्टीप्लाई a का मतलब c इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई a, और c डिवाइडेड इक्वल टू a का मतलब c इक्वल्स c डिवाइडेड बाय a. सिमिलरली मॉडुलस c परसेंट इक्वल टू का मतलब c इक्वल्स c परसेंट a, एंड c एक्सपोनेंट इक्वल टू a का मतलब c इक्वल्स c एक्सपोनेंट a. सिमिलरली फ्लोर डिवीजन में c स्लैश स्लैश इक्वल्स a का मतलब c इक्वल्स c स्लैश स्लैश a, right? And now we come at the recap. Python language was created by Guido van Rossum in 1991. It is used at variety of fields including software development, web development, scientific computing, big data and artificial intelligence. And Python is portable and platform independent. मतलब हम इसको कहीं पर भी execute कर सकते हैं. There are 2 modes of writing program. एक होता है इंटरैक्टिव मोड, दूसरा होता है स्क्रिप्टिंग मोड. एंड अगर हम हैश सिंबल्स के साथ कोई भी लाइन में कमेंट देना चाहें तो कमेंट देते हैं, एंड ये हमेशा केस सेंसिटिव होता है. यू कैन यूज ईदर पेयर ऑफ सिंगल और डबल और ट्रिपल कोट्स टू क्रिएट अ स्ट्रिंग, एंड इस तरह से हम ये सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं. नंबर, डेटा टाइप, स्टोर्स, न्यूमरिक डाटा, स्ट्रिंग में आपके अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स आते हैं, स्पेशल कैरेक्टर. पाइथन में डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं. इनपुट कमांड जो होता है वो एंटर करने के लिए यूज़ होता है. कीबोर्ड से आप डाटा जब एंटर करना चाहते हैं, एंड यहाँ पर हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो नाउ योर टाइम टू डू द एक्सरसाइज. इस एक्सरसाइज को आप खुद करेंगे एंड यू विल एंजॉय डूइंग इट. गुड बाय. और फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए गुड बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग.